let's learn about unbalanced growth, right? So, in front of you is a question about the same. The question reads, according to Hirschman, unbalanced growth can be through social overhead capital or direct productive activities. Discuss. So, in order to answer this question, let's start from the beginning. Okay. So, what is unbalanced growth? So, basically, unbalanced growth is a way or process of economic development which came into picture as an advancement over the balanced growth theory. What was balanced growth theory about? Balanced growth theory said that investment in all the sectors should be done equally in a balanced way so that the economy can move forward. There is growth and development. Now, the problem with balanced theory is that this is a theory in underdeveloped or less developing nations, right? Where capital is scarce, resources are scarce, obviously. So, in such a nation where the economy is already stuck at a low level income, right? For example, our vicious cycle of poverty. So, that is low level equilibrium, right? Low level equilibrium income, the concept of vicious circle of poverty is given by Marx. So this was the concept of so in this scenario, in this situation, if the economy has to move forward, that is overcome this trap, this low level income, then huge amount of investment is required. Now we know that in less developing nations, obviously they lack these kind of funds, capital, resources, etc. So it's not possible to equally invest in a huge amount in every sector in a balanced way. That means if investment is done in balanced way, then whichever sector needs more focus will lag behind, whereas a sector which is relatively better off will advance from that, but will have no effect on each other. As a result, there will be coordination failure, and so there was a problem with balanced growth theory. This was mentioned by many economists like Singer and Hirschman. So, what did Hirschman say? Hirschman came up with the approach of unbalanced growth, right? Hirschman's unbalanced growth. What is unbalanced growth? Just the opposite of balanced growth. Balanced growth means all the sectors developing together, investing together equally in a balanced manner. Unbalanced means will not invest equally in all the sectors. We will not maintain balance or equilibrium. That is, in order to overcome this low level income trap and to move forward as economic growth, we need to disturb the equilibrium. We need to create unbalance in the nature. Disequilibrium will lead to invention, innovations, and which will obviously lead to more and more progress in the economy. So this was the idea behind the unbalanced growth. Okay, so let's just have a look at what Hirschman tried to say it properly in his words, right? So basically, what is the Hirschman's argument? That is to create a deliberate imbalance in the economy according to pre-designed strategy is the best way to accelerate economic development as discussed. So deliberately create imbalance in the economic disequilibrium so that there will be this hunch to invest, innovate, etc. So then the economy will not be stagnant. They will try to move forward, right? So for that to happen, it is not possible or not right to invest in all the sectors together, but pick up few sectors, make it your priority and invest only in one or two sectors, and the benefit from those sector will be reaped to the other sector. As a result, all the sectors will flourish together, right? मतलब कि हम लोग एक दो सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको चूज करेंगे और उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट करेंगे,
और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होगा उसके बदले क्या होगा, दैट विल रीप द इन्वेस्टमेंट एंड द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन अदर सेक्टर्स एज वेल। तो यहाँ पे हमने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, इम्बैलेंस के चलते बाकी सब में इनोवेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट बढ़ा और प्रोग्रेस हुआ। तो यही हर्षमैन का आइडिया था जो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि साइमल्टेनियसली rather one or two strategic sector or industry should be developed by making huge investment। मतलब कि अगर हम लोग गुड्स को दो हिस्से में डिवाइड करें, जो कि है हमारा कैपिटल गुड और एक क्या होता है कंज्यूमर गुड्स, है ना। कैपिटल गुड्स यानी कि जिसको हम लोग यूज करके फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से कंज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों में एक साथ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कैपिटल गुड्स को प्रायोरिटी दिया जाए और उसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो द बेनिफिट्स विल बी रीप्ड फ्रॉम दैट सेक्टर, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज भी ठीक ठाक से बनना स्टार्ट हो जाएगा। So that is why this concept of disequilibrium and unbalanced growth was developed. So capital goods industries accelerate the development for the economy, where development of consumer goods industries is the natural outcome। मतलब कि आप अगर पीछे से पुश देंगे तो सामने भी डिमांड और इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, लेकिन आप अगर बेस नहीं तैयार करेंगे और फाइनली सामने जाके अगर उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसको सपोर्ट देने के लिए अगर चीज नहीं रहेगा तो इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। सो दैट इज द थिंग। तो इसीलिए अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे सेक्टर्स में साथ में हम बैलेंस नहीं करेंगे, इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे, ऐसा हर्षमन का मानना था। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने दो पार्ट्स डिवाइड किया है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग सोशल ओवरहेड कैपिटल में, नहीं तो डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में। तो इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं। तो दो जो था, एक है हमारा एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन sorry, let's first discuss about SOC, right? Yes, so excess investment in SOC. SOC is social overhead capital. Okay, so what is the meaning here? It means any type of investment that involves, for example, cheap electricity, right? Education, health. So in these are the types of sectors in which if investment is done, so these are all the social overhead capital in investment in social overhead capital। तो अगर इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ऑब्वियसली मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, चीप इलेक्ट्रिसिटी में, तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जो बडिंग इंडस्ट्रीज है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनको भी कितना फायदा होगा, और वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने आप को, और वो भी क्या कर सकते हैं, मार्केट में आराम से चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांटेज। यानी कि आपने इन्वेस्ट तो किया है इस सोशल ओवरहेड कैपिटल में, लेकिन रीप कर रहे हैं बेनिफिट आगे चल के बहुत सारे चीजों में जो ग्रोथ में होगा। तो इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसओसी, दैट इज सोशल ओवरहेड कैपिटल, और ये है इनके एग्जाम्पल्स। दूसरा जो है हमारा एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन DPA, that is direct productive activities। यानी कि हम लोग यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो कि रेडीमेड अवेलेबल है। तो अगर हम इन चीजों पे अगर करेंगे इन्वेस्टमेंट तो वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ऐसे इन्वेस्टमेंट उन एरियाज में किया जाता है जहां पे पता है कि हेवी प्रॉफिट होगा। ओके, सो ये है मीनिंग ऑफ डीपीए एंड एसओसी। नाउ द क्वेश्चन इज डिसइक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट करें। तो हमने दो सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि अनबैलेंस्ड इन द सेंस क्या, हम लोग या तो एसओसी में करेंगे और डीपीए को छोड़ देंगे,
या फिर डीपीए को करेंगे, एसओसी को छोड़ देंगे, एसओसी से डीपीए की तरफ जाएंगे या फिर डीपीए से एसओसी की तरफ जाएंगे। तो किस तरीके से हमें डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करना है ना, तो हम लोग समझ लेते कौन सा सही है। मान लीजिए एसओसी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एसओसी से हम लोग डीपीए में जाएंगे, तो वी आर क्रिएटिंग डिसइक्विलिब्रियम थ्रू एसओसी। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट इन्वेस्टर को बोला कि आप प्लीज फंड्स अपने इन्वेस्ट कीजिए इन सेक्टर्स में सच दैट कि जैसे चीप इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल हो या फिर वाटर सप्लाई अच्छे से हो, ताकि स्मॉल जो न्यू इंडस्ट्रीज है, न्यू फार्म्स है या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो लोग आराम से क्या कर सके, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चालू रख सके, या फिर वाटर सप्लाई से इरिगेशन, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन स्मूथली चले, इसकी वजह से इन्वेस्ट किया जाएगा। और इनसे जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो सोचेंगे कि अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो ये लोग को बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा और हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एसओसी में इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से जो मैंने बोला कि क्रॉप्स हो गया या फिर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे आ जाते हैं हमारे डीपीए में। इसका मतलब कि इसमें हमने इन्वेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट रीप हो गया, इसमें दोनों का प्रोग्रेस हुआ, सो देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा है उल्टा, मान लीजिए डीपीए से एसओसी करना चाहते हैं, ठीक है, डिसइक्विलिब्रिया थ्रू डीपीए टू एसओसी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इन्वेस्टर वहीं पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा जहां पे उसको पता है कि ह्यूज एंड हेवी प्रॉफिट है। अब जनरली ह्यूज एंड हेवी प्रॉफिट जो है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज में, वैसे मटेरियल्स में ही होगा, तो ही विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन दोज एरियाज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे प्रोड्यूस होगा। लेकिन मान लीजिए एक बहुत बड़ा फर्म है, उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन उसके पास बेसिक कम्युनिटीज लाइक ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी ठीक टाइम पे नहीं पहुंचता है, उसके लेबर्स बीमार रहते हैं, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी ठीक से नहीं है, तो ये सारे जो बैकवर्ड जो चीजें हैं ये सपोर्ट देने के लिए नहीं है, तो क्या फायदा डीपीए में इन्वेस्ट करके, है ना। तो अभी वहां पे इंडस्ट्री को ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी मिले, उसके लिए फिर मान लीजिए कि पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को जाके उनको you have to make them understand and make deal with them, so this is all creating more pressure। यानी कि डीपीए में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एसओसी में ग्रोथ हो, दैट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग व्हाट, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, टेंशन, नॉट स्मूथ एट ऑल। तो इसीलिए थ्रू एसओसी अगर डिसइक्विलिब्रियम किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर रिलीविंग वे या टेक्निक या प्रोसीजर, ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं कि डीपीए में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर क्रिएटिंग प्रोसेस। So this is all about DPA and SOC according to the unbalanced growth theory of Hirschman.